This is 1 year diploma, 1 year postgraduate diploma in early childhood and foundational stage education. So the program code of your program is PGDECFE. So dear students, today we will discuss on third course, that is curriculum and pedagogy for early years and foundational stage education part 2. So the resource person have joined the session. So today Dr. Archana Kumari is the resource person for this course. So Dr. Archana Kumari ma'am, welcome Thank you, sir. on behalf of IGNOU Regional Center Jaipur. And Dr. Archana Kumari is the faculty member of in Department of Home Science, ICG College, Jaipur. So welcome ma'am and our students. मैम अनम्यूट करिए अर्चना मैम. I'm unmuted. Shall I start now? Yes, we will start the session ma'am. Okay. I welcome you all. So just give me a brief introduction one by one, just switching on your camera and unmute yourself one by one, because few students are there only. I think 6 or 7 only. So you can unmute yourself, you can Yes, switch on your many camera. students are joining. No So problem, we are sir. communicating them. Uh, Meanwhile, I can introduce myself and I can take their introduction. yes, myself, Dr. Said Singh, Assistant Regional Director, IGNOU Regional Center, Jaipur. So Okay. all students, please switch on your camera and introduce yourself. Yeah, Sanju has switched it on. Shobha, then Huma, Marlin, Anu, Sheetal. Okay. Marlin, Anu, Huma. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Ma'am, myself Sanju Singh. Okay. Good morning, ma'am. Myself Shobha. Good morning, ma'am. I'm Sheetal Sonpal. Good morning, ma'am. I'm Merlin. I can see your name on screen. So don't introduce just by your name. You can tell me what you are doing right now and why you are enrolled in this particular course. What is your future plan? I want to know that. Okay. Ma'am, myself Sanju Singh, and currently I'm a housewife. I have a 1 year old, and I have very interest in teaching field. So that's why I'm very interested to doing this course so that I will interact with the small children and will do a job in this teaching field. Currently, And I'm a housewife. Sanju, have you done any job in early childhood sector before? Yeah, 2 year Okay, job I Huma. have done with the primary section, 1 to 5th Okay. classes I have conducted. That is 2 year of experience. Oh, that's great. Good, Sanju. Yeah, Shobha. Ma'am, after I have a 4-year-old child, after having a child, I develop an interest that how a child is developed, how मतलब उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनके हॉबीज क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने में थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट लगा आफ्टर हैविंग अ बेबी. So तो आप इसको एज ए करियर परस्यू करना चाहेंगे या सिर्फ अपने बच्चे के लिए आप ये कोर्स में एनरोल हुई हैं? in play school teacher. ओके, फॉर प्ले स्कूल टीचर. ओके, शीतल. Yes, ma'am. I have developed interest even after having my child, and I thinking of having my own preschool setup, and that's why I've been here in this course. That's really great. That's a good opportunity. हाँ. Huma. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, I have done bachelor's degree in home science in human development and family studies. I have From which already university, studied beta? From which university? MS University, Vadodara. Okay, great. हाँ. I already have knowledge of ECC, but I wanted post-graduation degree. Okay, this is not post-graduation. I'm making it very clear. It is post-graduation diploma right now. They Yes, may ma'am. start in the next year, but right now it's diploma. I'm not. है ना?
I didn't find master's course anywhere in distance. No, That's no, why. you have in SNDT, then you have in Delhi University. They are running MA, MSc in early childhood care and education. They are running, but it's okay. You Uh, can do it from IGNU also. It's valid. It's a very good course, and it's a great initiative they have taken. Ma'am, I still want to do masters. Please share details later. That we'll talk later. Okay. Okay, Right now thank you, we are ma'am. talking only about this course. Yeah, Okay, Marley. thank you. Ma'am, I used to work as a play school teacher for 1 year, and then I Hmm. left my job. From there, I was working in a corporate company for 4 years. Then, after having my child, I left my job. So now I have two children, and when I'm thinking of going back to work, I don't want to go for a corporate job. I don't think so. I'll have time with children more. So I thought I can get back into teaching, and this course So will help me. you don't have passion for teaching. You're just joining it just No, because you no, will no. get It's not time for like your that. child. No, no, not like Then that. I enjoyed teaching more than corporate okay. company. Corporate company, they give money and all, but it was the best time was when I was working in the play school. All these children, when they were around me, that feeling I can never get it anywhere else. Okay, So great, great, great. that's why. Anoop, Anu, are you there? Is he a student or the admin one? Student. Okay. Okay, one thing I would like to ask, are you all comfortable with English or Hindi or mix? Both. Ma'am, can you Mix. Hindi a little? I don't understand Hindi much, so if it is bilingual, it will be better. Bilingual. That's why I asked, shall I go for mixed one? Because Shobha, I think she is comfortable in Hindi, then Huma is comfortable in Hindi little bit. So I'll talk in mix, right? So Okay. what you have learned so far in this course? See, one thing I'm making it very clear, it's not a normal class. It's a counseling session. Okay. So you have to go through the books. I cannot finish the whole book in 2 classes or 3 classes. It's not possible कि मैं depth में जाऊं और आपको पढ़ाऊं. Not possible. So you study, you go through those chapters, and whatever doubt you have, you can ask me. Okay. This particular subject is about curriculum, right? This particular paper is about, please mute yourself, and whenever you want to speak, only then you unmute yourself, okay? Otherwise you keep yourself muted, right? Yeah. So this is a counseling class. I'll not take the whole class कि आपको in depth जा जाके मैं एक एक चीज explain करूँ. Obviously whatever doubt you will have, I'll explain those things. क्योंकि 3 classes में इतना बड़ा बड़ा book और इतने depth तक जाना will not be possible for anyone. है ना? So first of all you tell me कि what you have learned in curriculum, क्योंकि आपने part 1 शायद कर लिया होगा curriculum का. तो what you have learned from curriculum? What is curriculum? Especially for early childhood, I'm asking. For us, for college level or for school level, CBSE ने दे दिया, UGC ने दे दिया, that is curriculum, right? So we don't have to work much. हम बस उसी को pedagogy में implement करते जाते हैं. But in case of early childhood care and education, the case is very different. हमारे पास कोई फिक्स करिकुलम है किसी रेगुलेटरी बॉडी का अर्ली चाइल्डहुड के लिए? Do we have till now? No. तो व्हाट दे डू, जैसे अभी शीतल ने भी बोला कि मुझे प्री स्कूल खोलना है, देन मर्लिन हैज ऑलरेडी वर्कड, संजू हैज ऑलरेडी वर्कड इन अर्ली चाइल्डहुड, देन हुमा is doing human development or already done human development. So what you have found in the field कि early childhood curriculum होता क्या है? Based on your experience, you please interact with me one by one. What you have found? It is basically about the child development and how a child grow and how they perceive the things differently, even like not like an adult. So it is just how you can handle the child, how you can interact with them, and how you can help them to learn and grow. Okay, okay, good. And Sheetal, if you don't mind me asking, which school you are working in? Actually, I'm in Gujarat, so here regional school is there, a private one. I've been there with them. Is it in franchise model or a single branch? No, single branch, a private Okay, ownership. okay, okay. So just tell me, जो owner थी, was she qualified for early childhood education? Was she from this field? Uh,
Actually, it is a kind of a trustee mode. So they have a principal, and she is qualified. I don't have a knowledge about qualification of trustees. No problem. Yeah. Sanju, you have also worked in preschool, right? So you can share your experience only about curriculum. I'm not asking anything else because we are going to study curriculum. So it's very important to understand what curriculum is and why it is so important, especially for early childhood education. है ना? हाँ. Yes, ma'am, I have teached first and second class, especially computer subject. क्या पढ़ाते थे संजू आप फर्स्ट सेकंड में? Computer subject, ma'am, especially conducting and computer. ओके, तो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर से उतना लेना देना है. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. मर्लिन, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Yeah, ma'am, I worked in Time Kids. I was teaching a play group that is 2.5 to 3.5, and all of their concepts was pre-math concepts. Like for example, colors and all when they introduced, it was a different play way of teaching. For example, I gave them red and blue paint in their hand, and I just did some magic. I said you have to do a magic, and they had to rub their fingers, and they found purple, and they were excited. So all their concepts, every 20 days, the concept was the curriculum was new portions were coming in with this play way of teaching for children. Because they were too young, there was no much of writing and all. It was more of a play way of teaching. You have your own kids, right? Yes. So are you sending them to preschool? My younger one is 3-year-old. He's going to Anganwadi. Just now I Anganwadi. dropped him off in the Anganwadi and came. My elder one is 6-year-old. He's going to a school. Okay, yeah, I'll talk about younger one. What they are teaching in Anganwadi? What is their curriculum? It is just 2 weeks since he went. He started going. Just now he turned 3. So right now he's not there for a long time. He's there only for like 2 hours and he's coming back. They're teaching him. I think it's in here in Kerala. So they're teaching him a lot of rhymes, and I'm not sure. I saw only a few videos of them teaching rhymes, and other thing is even teaching them a lot of things to do by their own, like how to keep themselves Okay. and all that. Did you send your older child also to Anganwadi? No, he that time it was lockdown. By the time he turned 3, it was lockdown, and I couldn't send him to Anganwadi. I missed that. Yeah. Anyone else जिसका बच्चा जा रहा हो preschool या Huma, you can share your experience. What they are teaching? Yes, ma'am. Basic, like basic vocabulary building, play method, and concepts like mathematical concepts, scientific experiments. Okay, Huma, one direct question. Are they teaching your child alphabets? Yes, Okay. they Number? introduce alphabets, numbers also. Yes, Okay. And in a reading, play method. CAT cat and COAT code like that? Yes, yes. They're teaching. So Yes. do you think it's a right age to learn all these things? They understand, but we can. I also. अच्छा, I एक बात started at बताओ, home also. एक बात बताओ, अभी आपका it's for everyone. Suppose your child in preschool and they are learning alphabets, they are learning words association, whatever you say, they are writing A, B, C, D, 1, 2, 3. So what they will learn in class 1 and 2, because the syllabus is again the same. करिकुलम इज सेम. अगर किसी का बच्चा आप में से फर्स्ट क्लास में है तो आप उसका करिकुलम जो है ना वो खोल के देखिए. इट्स अल्फाबेट्स, बेसिक अल्फाबेट्स, नंबर्स, है ना, राइटिंग, रीडिंग वहां से स्टार्ट होता है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ टीचिंग दिस अल्फाबेट्स एंड नंबर प्री स्कूल? अगर मेरे बच्चे को प्ले ग्रुप में भी अल्फाबेट सिखाया जा रहा है एंड नर्सरी में भी अल्फाबेट सिखाया जा रहा है, फाइनली बाय द क्लास ऑफ 1 he will enter, he will get bored from the same thing because it's a repetition for him, and children, they don't like repetition at all. So whatever curriculum they have right now, एक second. we have other work also. हाँ, तो what I was saying कि अगर मेरा बच्चा सेम चीजें पढ़ रहा है प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, देन क्लास 1 में, तो इट्स टू मच रिपीटेशन फॉर देम, isn't it? तो बच्चे को बार बार अगर आप रिपीट करोगे ना, जैसे हम एक ही चीज सिखाते हैं तो वी ऐड वेराइटी.
That's the one component of curriculum. I'll come to that. Because you are teaching them one thing, you cannot adopt the same pedagogy to teach the same thing. अगर मैं अल्फाबेटी सिखा रही हूँ तो मेरा pedagogy अलग अलग होता है ना. आप 3 सालों तक उसको सेम चीज रिपीट कर रहे हो, उसका तो धीरे धीरे लर्निंग में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. सेकेंड थिंग, आप कितने वर्ड सिखाओगे? CAT कैट सिखा दोगे, MOUNTAIN मॉन्स्टर वर्ड माउंटेन सिखा दिया आपने उसको जेली का स्पेलिंग सिखा दिया, रैट का स्पेलिंग सिखा दिया, कोट का स्पेलिंग, लॉयन का स्पेलिंग, एवरीथिंग रटवा दिया आपने, उसको रोट मेमोरी करवा दिया. Is it the right curriculum they are following? Ma'am. And as a mother, are you all happy with this curriculum? No, ma'am. Actually, we don't have a particular curriculum designed by the government or any other bodies, so that every different setup has their own thing designed by themselves, particularly for the preschool and playschool. This is what the crux of all the discussion till we had. है ना. We don't have any regulatory body, we don't have any fixed curriculum. जैसे स्कूल एजुकेशन में they have the curriculum of NCERT follow करना है ना. At college level we have the guidelines from UGC के 80% आपको UGC का ही curriculum follow करना है, 20% is regional variance, that is acceptable, है ना. लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है अभी तक. मैं आगे आऊंगी, अभी तक हम यही जानते हैं कि नहीं है. तो अपने जो मैंने आपसे पूछा ना कि आपकी जो ओनर थी प्री स्कूल की, वॉज शी क्वालिफाइड इनफ टू ओपन अ अर्ली चाइल्डहुड स्कूल? दिस क्वेश्चन हैज रिलेवेंस इन दिस कि अगर मैं एक प्री स्कूल खोल लूँ, सपोज मैंने तो दिल्ली में 40 स्कूल्स विजिट किया था, है ना, एंड आई केम अक्रॉस वैरायटी ऑफ पीपल रनिंग प्री स्कूल्स. कोई बीटेक करके प्री स्कूल रन कर रहा है एंड कोई MBA करके रन कर रहा है. जैसे अभी मर्लिन ने बोला कॉर्पोरेट में कर लिया और फिर अब अर्ली चाइल्डहुड में आना चाहती है. तो व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट यू आर ओपनिंग अ प्री स्कूल, एंड व्हाट आंसर आई गॉट, दैट वाज वेरी शॉकिंग कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है फैमिली, क्योंकि हम 1 बजे यहाँ से फ्री हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स द इजीएस्ट वन कि हमने प्री स्कूल खोल लिया. बट जस्ट इमेजिन अबाउट द फ्यूचर ऑफ दो चिल्ड्रन कि उनको वैसा लोग डील कर रहे हैं जिनको अर्ली चाइल्डहुड का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि प्ले वे मेथड क्या होता है. सेकेंड थिंग, व्हेन वी डिजाइन द करिकुलम वी फॉलो अ पर्टिकुलर अप्रोच. जैसे मैं बोलूं फ्रेडरिक फ्रॉबेल का अगर मैं किंडरगार्टन अप्रोच करूं तो वो प्ले वे मेथड पे है, उसकी पेडागोजी अलग होती है, करिकुलम अलग होती है, लर्निंग मटेरियल्स अलग होते हैं, ही हैज गिवन सो मेनी टॉयज गेम्स, है ना. तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है. इफ आई एम ओपनिंग अ मॉन्टेसरी तो मॉन्टेसरी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है. मारिया मॉन्टेसरी का स्पॉन्टेनियस लर्निंग होनी चाहिए, वो डायडेक्टिक मटेरियल यूज करते हैं, वो नॉर्मल मटेरियल यूज नहीं करते. तो दे हैव डिफरेंट अप्रोच. आपका करिकुलम एक अप्रोच पर बेस्ड होता है, राइट. लेकिन जब मैं वहां के स्कूलों में विजिट करने गई तो व्हेन आई आस्क्ड देम व्हिच अप्रोच यू आर फॉलोइंग, किंडरगार्टन और मारिया मॉन्टेसरी वाला मॉन्टेसरी, एंड द आंसर आई गॉट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है कि वो प्लेवे तो कर रहे हैं बट कुछ डायडेक्टिक मटेरियल उन्होंने खरीद के, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव, डायडेक्टिक मटेरियल खरीद के अपने प्री स्कूल में रख रखा है, एंड दे आर थिंकिंग कि मॉन्टेसरी की भी चीजें तो है उनके पास, तो स्पॉन्टेनियस लर्निंग करा तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है. किंडरगार्टन एंड मॉन्टेसरी दोनों, इट्स नॉट पॉसिबल. यू आर रूइनिंग द लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड. So curriculum basically is a very very important part in early childhood education, है ना. 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में. द फर्स्ट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर प्ले ग्राउंड नहीं है तो चलेगा, बट अगर प्री स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं है तो आप बच्चों का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बर्बाद कर दें, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू रन, ही इज नॉट एबल टू हॉप, ही इज नॉट एबल टू क्लाइंब. सो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड, राइट. प्री स्कूल में अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये हो गया, क्लासरूम नहीं है, टेबल पे आपने बिठा रखा है बच्चों को, इतने छोटे छोटे टेबल देके कि आप उसी में एडजस्ट करो. क्लास की आपकी रेस्ट्रिक्टेड टाइम टेबल है करिकुलम में, 10 से 10:30 ये, 10:30 से 11 ये, 11 से 11:15 ये, 11:15 से ये. Do you know the time attention span of a child? What is the attention span of a child? Maximum. कितनी देर तक वो एक जगह बैठ सकता है? You all are mother, I think. 5 minutes. 5 minutes. Anyone else?
I think it's 5 minutes to my son has very less attention span. I believe it's 5 minutes. I don't think it's more than that. अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट्स मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद बच्चा एक काम नहीं कर सकता, एक जगह नहीं बैठ सकता, ही कैन नॉट लिसन यू। 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद वो बोर हो जाता है। आप नहीं बोलोगे तो भी वो क्लास से वर्कआउट कर जाएगा। Ma'am, my son is in play school, and in starting days, I always get a complaint that he didn't sit, he didn't sit, he didn't want to sit. He अब is आप moving. सोचो कि आपके बच्चे की गलती है, उस प्री स्कूल की गलती है जहाँ वो जा रहा है। आप खुद ही डिसाइड करना है। सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो जब बच्चे की अटेंशन स्पैन ही 15 to 20 है, तो करिकुलम में हम कैसे आधे घंटे की क्लास रख सकते हैं, कैसे हम बैक टू बैक क्लासेस रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर मैंने 10 to 30 कलरिंग रखी, बेटा म्यूट योरसेल्फ शोभा, हाँ, अगर मैंने 10 to 10:30 सपोज कलरिंग की क्लास रखी, 10:30 से 11 o'clock तक मेरा इनफॉर्मल डिस्कशन का क्लास था, जिसमें टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, है ना। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं एंड 10 to 10:30 मेरी कलरिंग की क्लास है। आई हैव गिवन देम द शीट्स, कलर, एवरीथिंग, एंड नाउ दे आर डूइंग। सपोज आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 6-7 हैज फिनिश्ड, है ना, but rest of the 3 are enjoying a lot that coloring, and it's already 10:30. I have to start the another class, informal discussion wala, but that child, those 3 children are not ready to leave the paper. nahi ma'am mujhe to aur karna hai, let me do that, I'm enjoying it. So as a teacher what I should do, I should snatch the paper ki nahi, ab अर्ली चाइल्डहुड की दूसरी क्लास शुरू हो गई आपके इनफॉर्मल डिस्कशन की, यू हैव टू मूव टू द अदर क्लास। शैल आई डू दैट? आई कैन नॉट, क्योंकि मेरा पहला करिकुलम का प्रिंसिपल ही है कि द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टीच टू द चाइल्ड दैट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन डूइंग कलरिंग, हाउ कैन आई ब्रिंग दैट चाइल्ड टू द क्लास ऑफ इनफॉर्मल डिस्कशन? आई कैन नॉट। सो व्हाट शुड आई इनकलकेट इन माय करिकुलम? फ्लेक्सिबिलिटी। That is one of the most important principle of curriculum, flexibility। कि आपने अगर 10 to 10:30 क्लास अरेंज कर दिया, अगेन 10:30 to 11, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप वो टाइम टेबल फॉलो करो उस करिकुलम का। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम प्लान। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ऑल द एक्टिविटी शुड बी बेस्ड ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड थिंग हम आते हैं करिकुलम पे, जो इसका पार्ट है, इस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली, कि इफ यू आर टीचिंग अल्फाबेट्स, इफ यू आर टीचिंग नंबर्स, एवरीथिंग यू आर टीचिंग टू द चाइल्ड, है ना। स्टिल जो असर का रिपोर्ट है, असर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ASER या ASER है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशन ऐसा करके है। उसका डेटा बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। वो ये कहता है कि इन इंडिया स्पेशली, एंड दे कंडक्ट सर्वे इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स बोथ, till class 4th or 5th, the children are not able to read, they are not able to write, they are not able to perform a simple calculations, addition or subtraction। What you are teaching, जो आप 2.5 से 3 साल के बच्चे को आप सिखा रहे थे अल्फाबेट, नंबर, रीड करना, तो आप कर क्या रहे थे? आपके करिकुलम में ऐसा क्या था कि बच्चा अभी तक 5th क्लास में आ गया, उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता। एंड दिस इज आई पर्सनली हैव फेस्ड व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD। माय टॉपिक वाज स्लो लर्नर एंड इट वाज इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सो आई प्रिपेयर्ड अ नाइस मॉड्यूल, वर्कशीट्स बहुत प्यारे प्यारे बनाए मैंने कि बच्चों को दूं। हुमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हुमा। हाँ, तो मैंने वर्कशीट्स बनाए कि मैं बच्चों को दूंगी। And when I went to implement those worksheet, administer those worksheet, I was shocked to know कि 3rd क्लास में मेरा एक्सपेरिमेंट था। 3rd क्लास के बच्चे they were not able to read it कि लिखा क्या है उसमें। आंसर के लिए उनको लिखना पड़ता, they were not able to write it। रोटी लिखना है कि खाने में प्रोटीन का सोर्स क्या है, रोटी लिखना है, नहीं लिख रहे। चना लिखना है, नहीं लिख पा रहा है। अब मैं अगर उसको पिक्चर ड्रॉ करने बोली चना का, तो सर्कल ड्रॉ करें। सर्कल का मीन्स सो मेनी थिंग्स। This particularly I have faced. This is only because of lack of proper things in the curriculum of preschool. अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि प्री स्कूल में हम करिकुलम कैसा रख सकते हैं।
है ना। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी जो आप लोग कह रहे थे ना कि अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, नाउ यू कैन नॉट से दैट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज। आप सब ये अर्ली चाइल्डहुड वाले डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। NCF 2022 डाउनलोड कर लीजिएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, NCF फॉर फाउंडेशन स्टेज 2022, राइट इट समवेयर, ठीक है। और ये हुआ है कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आई होप नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में नहीं आई है? Yes, ma'am. हुमायूं नो, Yes, ma'am. शीतल, संजू, मर्लिन, Yes, आर यू ma'am. अवेयर ऑफ दैट? ओके, Yes, ma'am. No, ma'am. ओके संजू, कोई बात नहीं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ इसका कर देती हूँ, 5 मिनट लूँगी मैं। हमारी पहली पॉलिसी 68 में आई थी, एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी होती है कि आपके हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, पेडागोजी कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कैसी होगी, दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन इन दैट। दूसरी पॉलिसी 86 में आई थी। उसके बाद ये 2020 वाली पॉलिसी अभी NEP 2020 आई है। आप लोगों ने उड़ती उड़ती ये खबर सुनी होगी कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे अब, है ना, मल्टीपल एग्जिट एंट्री होगी। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो मैं वो पार्ट बता देती हूँ आपका NEP का, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सिलेबस में NEP होगा। NEP में क्या है, दे हैव चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। हमारे टाइम में क्या था, 10+2, हम 5th तक प्राइमरी में पढ़े थे। 5th के बाद अपर प्राइमरी आ गई, देन वी वेंट टू सेकेंडरी, देन सीनियर सेकेंडरी। 10+2 था हमारा स्ट्रक्चर। अब द स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड। उसमें कहीं प्री स्कूल का कंपलसरी हमारा नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल इफ यू गो, दे स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1, सो क्लास 1 to 10 एंड देन 11 12, यही हमारा स्ट्रक्चर था 10+2 का। नाउ दे हैव चेंज द स्ट्रक्चर 5+3+3+4। 5 इयर्स में उन्होंने क्या किया है कि अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। पहले ये इनफॉर्मल था पूरा का पूरा। आप चाहो तो अपने बच्चे को भेज सकते हो प्री स्कूल में, आप चाहो तो नहीं भेज सकते। आंगनवाड़ी भेजना है भेजो, नहीं भेजना है नहीं भेजो। बट नाउ इट हैज़ बिकम अ फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एवरी चाइल्ड हैज़ टू गो टू प्री स्कूल सेक्टर नाउ, ठीक है। आपको कुछ सालों में, 1-2 सालों में दिखेगा कि एवरी गवर्नमेंट स्कूल हैव इधर अटैच्ड आंगनवाड़ी और दे हैव ए सेपरेट किंडरगार्टन और प्री स्कूल, एनी काइंड ऑफ बालवाड़ी जो भी है उनका। हर प्राइवेट स्कूल में आपको प्री प्राइमरी कैंपस दिखेगा। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव created a foundation stage अलग से इस बार। Foundation stage means 3 years of preschool education and class 1 and class 2, total 5 years। 3 years of preschool education, class 1, class 2। इस 5 ईयर्स को हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। ये आपको फर्स्ट क्लास में ही बहुत क्लियर किया गया होगा, क्योंकि आपके कोर्स का ही नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशन स्टेज एजुकेशन। सो फाउंडेशन स्टेज इज टिल क्लास 2। इस कोर्स को करने के बाद आप क्लास 2 तक पढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब ये जो 3 साल का मैं बोल रही हूँ प्री स्कूल, ये क्या हम सेम सिलेबस पढ़ाएंगे प्री स्कूल में 3 साल तक, या इसको डिवाइड करेंगे? सेम चीजें पढ़ाएंगे? डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करेंगे ना, है ना। तो 3 to 4 इयर्स का अलग करिकुलम होता है, 4 to 5 इयर्स का अलग करिकुलम होगा। ओके, अब आते हैं अभी की जो करिकुलम है। मैंने आपको ABCD अल्फ़ाबेट पूरा सिखा दिया। आई हैव टॉट यू द नंबर्स ऑल्सो एंड फ्यू, सपोज कि मैंने आपको 100 वर्ड्स इट्स अ बिग नंबर, राइट। 100 वर्ड्स एक साल में आपको प्री स्कूल में मैंने सिखा दिया एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। मेरा बच्चा तो पूरे 1 to 100 काउंटिंग जानता है। माई सन ही नोज अल्फ़ाबेट्स A to Z एंड देन ही कैन राइट A to Z and he can calculate, he can do addition, he can do subtractions, है ना। तो these things are being repeated again in the nursery class। and आपके यहाँ LKG, UKG या सीनियर KG, जूनियर KG जो भी आप लोग बोलते हैं, everything is repeated, है ना। बट करिकुलम में, मेरा करिकुलम, अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट हूँ और जो NCF कहती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि आप उसको प्री राइटिंग सिखाओ, आप उसको प्री रीडिंग सिखाओ, आप उसको प्री अरिथमेटिक सिखाओ।
आप उसको डोंट टीच देम रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक. द सिलेबस शुड हैव प्री रीडिंग, प्री राइटिंग एंड प्री अरिथमेटिक. नाउ दिस, have you heard this concept, pre reading, pre writing, pre arithmetic? Yes, ma'am. What is that, Uma? Pre-writing is before teaching writing, we should give fine motor exercises like clay molding, tracing, and pre-reading is increasing their vocabulary, phonic sound awareness, Since you have story. done from human development, जो कि मेरा फील्ड भी है ना, होम साइंस का एक ब्रांच है ह्यूमन डेवलपमेंट, सो यू आर स्पेशलाइज्ड इन दैट, दैट्स व्हाई यू नो. एंड फॉर Yes, अदर्स आई ma'am. जस्ट एक्सप्लेन इट. सपोज कि मैंने आपके बच्चे को जस्ट स्टैंडिंग लाइन सिखाया एक महीने में, just to draw a stand, and first day when he came to my school, I just gave him a crayon and asked him to scribble. अगले 10 दिनों तक वो बस स्क्रिबल कर रहा है. तो एज अ पेरेंट यू विल गेट annoyed कि what they are taking money for. My son is just doing scribbling, left right कर रहा है. But trust me, there is some objective there. The learning outcome is very very good. That is grip बना रही हूँ मैं आपके बच्चे का. पेंसिल होल्ड करने का फाइन मोटर जो स्किल होता है ना, दैट आई एम डेवलपिंग. एंड आई एम डेवलपिंग ऑन हिज आई हैंड कोऑर्डिनेशन की. लेफ्ट उसका हाथ जा रहा है तो उसके आई बॉल भी लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है तो राइट जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर राइटिंग विच द चाइल्ड नीड्स, है ना. स्क्रिबल जब वो करना सीख गया, एज हुमा सेड कि मैं उसको क्ले मॉडलिंग दूंगी ताकि उसके फाइन मोटर, और वो मैं उसको पेपर को स्क्रबल करने दूंगी जस्ट टू गेट कमांड ऑन हिज फाइन मोटर स्किल्स. So these are not the things I am doing in big. जब मैं एक मॉन्टेसरी में गई थी ना, तो one child was having 2 bowls. एक राजमा रखा था, एक खाली था और एक स्पून था, and what he was doing is कटोरी से उस कटोरी में डाल रहा था राजमा and all. तो I thought कि ये क्या करा रहे हैं? What this activity is? When I asked the teacher, she said कि we are working on a fine motor development. क्योंकि वो स्पून से उठा के इस बॉल से इस बॉल में डालेगा, तो it needs eye hand coordination and grip on the spoon. So whatever small activities they are organizing it for some certain kind of outcome, जो कि शायद एज अ पेरेंट हमें पता नहीं होता है, बट उनको पता होता है. अब मैंने आपके बच्चे को सपोज एक महीने स्टैंडिंग लाइन सिखा दी. नाउ ही इज एबल टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट मंथ आई वर्कड ऑन स्लीपिंग लाइन. नेक्स्ट मंथ आई वर्कड ऑन डायगोनल लाइन, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों. And after 4 months, your son or daughter knows how to draw a standing line, sleeping line, diagonal line, everything that is there in the curriculum. और 4 month के बाद एज अ पेरेंट यू गॉट annoyed and come to my school. क्या करा रहे हो आप? 4 महीने से बस वो लाइनें खींच रहा है. मेरी पड़ोसी का बच्चा है and he knows how to write A, B, C, D and all. As a owner or as a supervisor, I'll just ask you, ask the parents that how many letters that neighbor's son is able to write. If she says 10 letters उसने सीख लिए, A से लेके पूरा 10 तक सीख लिया उसने लेटर. मेरा सन तो अभी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, मेरे मनी सारे वेस्ट जा रहे हैं. I'll just call your child and I'll ask him to write A. I'll just show him A. ये है A, आप लिखो, है ना. He will write क्योंकि he knows diagonal line, he knows sleeping line. Till now, he has learned only standing line, sleeping line, diagonal line, nothing else. But he can make letters A, H, L, M, N, V, W, X, Y, Z. कितने हो गए? कितने हो गए आप बताओ? एंड आई एम इंश्योरिंग यू एज अ पेरेंट्स कि आपके बच्चे की जो हैंड राइटिंग होगी आपके नेबर के बच्चे की हैंड राइटिंग से फार बेटर होगी. वो जो ए लिख रहा है ना डायगोनल, वो शेकी होगा. आपके बच्चे का बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा डायगोनल लाइन, बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन हिज फाइन मोटर. फिर हम लोग जब वो सिखा देते हैं, देन यू वुड हैव सीन कि वो पैटर्न आते हैं ऐसे ऐसे वाले, बच्चों को बनाने के लिए ऐसे वाले आते हैं, ऐसे ऐसे वाले पैटर्न बनाने के लिए. दोज थिंग्स वी टीच देम जस्ट टू मेक कर्व. सी में जैसे कर्व होता है तो वो सी वाला कर्व फटाक से बना देंगे, डी उल्टा, यू, इस तरीके से. तो ये जो वर्कशीट्स आपके बच्चे को दिए जाते हैं ना, दीज आर प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट. अगर आपका बच्चा ये जानता है तो ही और शी विल बी एबल टू राइट ऑल द अल्फाबेट्स. नो नीड टू ट्रेस दैट अल्फाबेट. जो उनके स्कूल में सिखाया गया कि ए लिख के उसके ऊपर ट्रेस करते रहते थे, मैंने भी बचपन में बहुत किया है ट्रेस.
That is a wrong method to do. That is pre-writing skill. Now come to pre-reading skill. Pre-reading में here again I'll share one experience. I am from Delhi, and when I shifted to Jaipur, I got my son admitted in Nirja Modi in the mid of year. अगस्त में आई थी मैं, तो I got admission there. And just after 15 days, his class teacher called me and she said कि आपका बेटा तो बिल्कुल dumb है, he doesn't know how to read. मैंने कहा यार he doesn't know because he's just in class 1 and he was the topper there. तो बोली नहीं, हमारे क्लास के सारे बच्चों को रीड करना आता है, आपके बच्चे को नहीं आता है. तो आई थॉट कि ही इज फ्रॉम दिल्ली तो ही वुड बी स्मार्ट. मैंने कहा इज दिस द क्राइटेरिया ऑफ स्मार्टनेस? इफ ही डजंट नो हाउ टू रीड, ही इज नॉट स्मार्ट. First thing. Second thing, I just told her, just give me 15 days. My son will be able to read. And she said कि मैजिकल छड़ी है क्या, घुमाओगे और आपके बच्चे को आ जाएगा. मैंने कहा just give me 15 days. And trust me, 15 days के बाद he was able to read and better than other children. फिर मैंने उनको बोला कि आप अब बुक लेके आओ और मेरे बेटे को पढ़ने बोलो. फिर बोला इसमें क्या है, आपने एक चैप्टर रटवा दिया. मैंने कहा चलो न्यूज़पेपर निकाल लो अगर आपके पास कोई है तो. एंड लिटरली शी टुक आउट द न्यूज़पेपर एंड गेव टू माय सन. मेरे बेटे ने थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ा एंड शी वाज शॉक्ड कि पढ़ा कैसे. दिस इज जस्ट बिकॉज कि मेरे बेटे की प्री रीडिंग स्किल डेवलप हुई थी इसके प्ले स्कूल में. नाउ कम टू व्हाट इज प्री रीडिंग स्किल, कि ही नोज द फोनेटिक्स. ए नहीं पढ़ता था वो, ए पढ़ता था. सी क, बी ब, डी ड. बिकॉज वी आर इंडियन, वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी, है ना. क्योंकि जब हमारी टीचर हमें इंग्लिश में पढ़ाती थी तो आधे दिमाग तो हमारा इंग्लिश को समझने में चला जाता था एंड देन आधे कॉन्सेप्ट को समझने में तो हम डेविएट हो जाते थे, है ना. आपकी अगर मदर टंग इंग्लिश है तो आई कैन नॉट हेल्प इन दैट, बट बेसिकली हिंदी में वी कैन प्रोसेस बेटर. सो अगर मैंने A to Z का उसको फोनेटिक्स क्लियर कर दिया है कि H साउंड ह, है ना, L साउंड ल, S साउंड स, एवरीथिंग इज क्लियर. सो हाउ विल ही रीड कैट? A normal child will read CAT cat, CAT cat, RAT rat, RAT rat, MAT mat. He will by heart this like anything, rote memorization जिसको हम बोलते हैं. But a child who knows phonetics, he will not read CAT cat and RAT rat. He will read ka at a cat, ka at a cat, ka at a, ka at a, ka at a करके चार. And he will be able to read monster word also. मॉन्स्टर वर्ड भी पढ़ लेगा वो, जो बड़े बड़े होते हैं ना शब्द, माउंटेन, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत मॉन्स्टर होते हैं. ही विल बी एबल टू रीड दैट इफ ही नोज द फोनेटिक्स. सो टीचिंग दोज phonetics, those grammar, those syntax is the pre-reading concept. Sheetal, you were saying something? Yes, ma'am. Actually, same thing I want to share with you all. That when my child is in a preschool, I used to teach him the phonetical. Until now, he got help from that while reading, while writing also. He did not now cram the spellings or all. He can make his spelling by just listening to the pronunciation easily. That's the Because way. of that. That's the way to teach a child. Actually, that is a pre-reading concept. है ना, जो आपके बच्चे ने सीखा, दैट इज अ प्री रीडिंग कॉन्सेप्ट. एंड दो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और जो पैटर्न मैं बता रही थी, दैट वाज प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट. नाउ कम प्री अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट. हाउ वी हैव लर्नड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हाउ यू हैव लर्नड, शीतल, यू टेल मी, हाउ यू हैड लर्नड इन योर चाइल्डहुड. एडिशन कैसे सिखाया गया था आपको? Actually, I have done my preschool from the Montessori system. That is a 100-year-old school. Montessori have a very good system. रहने दो. Anyone else? Sanju? So, yes. Sanju, are you there? Yes, ma'am. How did you learn addition in your childhood? Ma'am, it's just for rote मुझे देखो, memorization. रोड का मुझे नहीं पता. देखो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. व्हाट माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू, 2 + 4, सपोज 2 lines, then 4 lines, and then count from the beginning. और एक बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 3 आते आते गायब, देन अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग. तो 6 को काउंट करने में मेरे को 5 मिनट्स लगेंगे एज अ चाइल्ड, है ना.
And trust me, I was teaching addition and subtraction with the same method to my son. और 10 days से मैं प्रैक्टिस कर करके थक गई एंड लिटरली आई वाज एनॉयड कि ये कैसा बेवकूफ बच्चा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं सीख रहा है. Then one day my nephew came and he said he is 2 year older than my son and he said हुआ क्या कर रहे हो. मैंने कहा एडिशन सिखा रहे, इसको सीख ही नहीं आ रहा. कह रहा आप जाओ ना, आप मेरे लिए एग ऑमलेट बना दो, आई विल टीच हिम एडिशन. मैंने कहा ओके सिखा दे जैसे सिखाना, मेरा तो मेन मोटिव है कि सीख जाए. आफ्टर 10 minutes I came and trust me, मैं जो नंबर दे रही थी my son was adding it. मैंने कहा ये क्या मैजिक है, क्या किया तूने? तो बोला आपका प्रोसेस ही गलत था. इट्स अ ओल्ड प्रोसेस हुआ है ना, अपडेट योरसेल्फ. मैंने कहा हाउ कैन आई अपडेट माई सेल्फ. ही सेड कि आपके बेटे ने या मैंने 1 to 20 काउंटिंग ही सीखी है, उससे आगे नहीं सीखी है हमने प्री स्कूल में. 1 to 20 इज मोर देन एनफ. ठीक है, लेकिन 1 to 20 फॉरवर्ड काउंटिंग, 1 to 20 बैकवर्ड काउंटिंग, 1 to 20 skip counting, right? 1 to 20 in ascending order, 1 to 20 in descending order. पूरे एक साल में यही किया है नंबर से रिलेटेड. 1 to 20 मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, बिग नंबर कौन है 1 to 20 के बीच में, स्मॉल नंबर कौन है. नाउ कम टू एडिशन, हाउ यू कैन यूज दिस प्री अरिथमेटिक स्किल इन योर एडिशन. ही सेड यू गिव मी एनी नंबर. आई गिव 7.9. ओके 7.9 जब दिया तो उसने क्या किया कि बिग नंबर इज 9, ही नोज, ही केप्ट इन हिज माइंड. 7 नंबर उसने क्या किया, फिंगर पे लाया ऐसे, एंड देन उसने बोला बिग नंबर को सर से निकालो एंड स्टार्ट फॉरवर्ड काउंटिंग इन एडिशन. He took out that 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. हो गया. फॉरवर्ड काउंटिंग एडिशन कर दो, बैकवर्ड काउंटिंग सब्ट्रैक्शन कर दो. 3 कॉन्सेप्ट, बिग नंबर, स्मॉल नंबर, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डन. So this is the pre-arithmetic concept. Now just tell me, is it necessary to teach the children alphabets or writing those alphabets, studying those addition and subtraction necessary in preschool? Is it? नहीं. Here comes the curriculum. कि हमारा जो करिकुलम है ना वो ही अभी गलत है. आंगनवाड़ी में भी करिकुलम अभी बहुत गलत है. लेकिन अब जब NCF आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला यू डाउनलोड दैट NCF 2022 एंड यू प्लीज गो थ्रू पेज 1 by 1. It's a very important document. You will come to know everything about the early childhood curriculum, how it should be, and what you should add, what you should remove. ठीक है, first thing. Second thing, have you all have any idea about theme-based curriculum? Anyone of you? Theme-based curriculum, what is that? Ma'am, I think every month the theme changes, like water or anything. All the topics related to water are taught. How as a teacher we select the theme? What goes around us, like from surroundings, we should select the theme. Like it's going on January, we can select the theme winter. देखो हमारा अर्ली चाइल्डहुड का बेसिकली जो प्री स्कूल का ऑब्जेक्टिव ही होता है फिजिकल डेवलपमेंट विच वी आर डूइंग थ्रू प्ले, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर. देन वी हैव सोशल डेवलपमेंट विच वी आर डूइंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटी एंड ऑल. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उसमें आपकी स्कूल रेडीनेस आती है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्री रीडिंग, प्री राइटिंग एंड प्री अरिथमेटिक, राइट. सो नाउ द सेकंड थिंग इज द चाइल्ड शुड बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको यही नहीं पता अगर रास्ते पे उसने ट्रैफिक पुलिस देख लिया कि हु इज दिस पर्सन, इज व्हाई इज वेयरिंग दिस ड्रेस. So knowledge about our surrounding is very important in early childhood. And what we see in our surroundings: plants, fruits and vegetables, these community helpers, doctors, nurse, teachers, traffic police and all. What else? Animals we see, festivals जो हम celebrate करते हैं, और different seasons we see, different types of transport we see. So these are the general things we see in our surroundings. So first objective is to make the child aware of those things. And that is why we keep, suppose we are teaching 9 months in a year.
4 months suppose holiday hota hai, summer vacation, winter vacation, everything. So for 9 months we should have 9 themes. That is theme based curriculum ki month of October is for the theme of animal. Now the question would be, how we can teach animal for 1 month? How is it possible? It is possible. क्योंकि in the beginning only I said कि they love doing variety of activities. They don't like repetition. तो अगर आपका एनिमल ही पूरे महीने सिखाना तो आपको रिपीट नहीं करना है कोई भी एक्टिविटी. एक तो अगर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया तो यू कैन रिपीट देम, अदरवाइज यू शुडंट, है ना. तो सपोज आई एम टेकिंग द सेम थीम एनिमल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिवाइड वीक्स वाला कि फर्स्ट वीक में आई जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल. सेकेंड वीक में आई जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ पेट एनिमल्स. थर्ड वीक में हम बर्ड्स पढ़ा देंगे. एंड फोर्थ वीक इज़ फॉर रिवीजन, जिसमें हम वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल और उसको सब कुछ पढ़ाएंगे. एक सेकेंड, आई हैव टू टेक दिस. हाँ, तो आई वाज डिस्कसिंग थीम बेस्ड प्लान. अब मैंने 3 वीक जो है वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल और बर्ड्स ले लिया. फोर्थ वीक में मैंने रिकैपिचुलेशन रख दिया, दैट मीन्स कि रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स. सो द होल मंथ ऑफ अक्टूबर आई टॉट देम, नॉट टॉट देम, आई डिस्कस विद देम ओनली द थीम ऑफ एनिमल्स. तो आप सोच के देखो, अगर आप 9 थीम 9 मंथ्स में उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना. बट द थीम शुड नॉट बी कलर, शेप, साइज. ये नहीं होता थी, वो ऑटोमेटिकली होता है ना. तो आपने 9 थीम उसको बता दिया ना. अब अभी अगर रेनी सीजन आ रहा है, अगस्त में सपोज, जुलाई में रेनी सीजन है, तो मैंने सीजन वाला कॉन्सेप्ट ले लिया है. फर्स्ट वीक में पढ़ाऊंगी रेनी सीजन, बिकॉज रिसेंटली रेनी सीजन अभी करेंटली चल रहा है. सेकेंड वीक में मैं समर, थर्ड में विंटर, फोर्थ में रिकैपिचुलेशन. अब 1 वीक में अगर मैं उसको रेनी सीजन पढ़ा रही हूँ, तो फर्स्ट डे व्हाट आई विल डू, I'll just introduce how the cloud forms, rain होता क्या है, and just let them feel the rain drops and all in their palm. Second day मैं उनको क्या सिखाऊंगी, what things you can carry in rainy season. boot है, umbrella है, so many things are there. Third day मैं उनको सिखा रही हूँ what you shouldn't eat and what you should eat during rainy season. ठीक है. तो इस तरीके से पूरे 5 डेज हमने उसको रेनी सीजन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाए. एंड इफ द चाइल्ड कम्स इन योर सेंटर एट 9:30, तो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज. आपने कलरिंग कराई, आपने कभी स्टोरी टेलिंग कराई, कभी आपने पेपर बोट ब्रेन में वो करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया. लेकिन वो पूरा दिन जो आपने मॉर्निंग में थीम रखा था ना, सपोज आज मेरा थीम है रेनबो, रेनी सीजन का, तो पूरे दिन की एक्टिविटी जो है ना वो रेनबो पे ही होनी चाहिए. अगर आप कलर भी करा रहे हो तो रेनबो ही कलर कराओगे. अगर आप राइम्स भी करा रहे हो तो रेनबो पे ही राइम्स कराओगे. इफ यू आर टेलिंग द स्टोरी, दैट स्टोरी शुड बी ऑन रेनबो. सो 9:30 to 12:30 पूरा रेनबो का कॉन्सेप्ट क्लियर होके वो बच्चा चला गया. नाउ यू हैव 5 days in a week. You divide that rainy season into 5 small concept and then you teach the child. So after 5 days you will know everything about rainy season, and half an hour in a day you have time to teach them color, size, shape, जो भी सिखाना है. Suppose
कितने कलर सिखाएंगे हम बच्चे को? 10 कलर्स बहुत है। 10 कलर्स भी मुश्किल से मिलते हैं हमें, क्योंकि अगर आप रेड और पिंक को कलर बोलते हो तो दे आर, पिंक इज नॉट अ कलर, पिंक इज अ शेड ऑफ रेड कलर, है ना। तो अगर प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर की हम बात करें तो 6 ही है। तो अगर मैं एक महीने अक्टूबर में जब मेरा रेनी सीजन चल रहा था, और अगर आई हैव टॉट देम रेड कलर एवरी डे जस्ट फॉर 1 minute, how will I teach in the curriculum? My method is just, I'll come in the class and I'll say, those who have worn red color, just stand up and clap for them. जिसने भी आज रेड कलर पहना, अब वो पिंक वाले भी खड़े होंगे, वो मरून वाले भी खड़े होंगे। एंड इफ फॉर 30 days, चलो संडे हटाओ, 25 days we have done this activity कि इस रूम में रेड रेड क्या है स्पॉट करो, they will come to know all the shades and tint of red, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो मरून हो, चाहे वो कोई भी रोज पिंक कह लो, कुछ भी कह लो। और इसीलिए आज के बच्चों को ना कलर के शेड पता होते हैं। येलो में लेमन येलो, तो ये येलो, सनफ्लावर येलो, बिकॉज द होल मंथ दे गो थ्रू द सेम कलर। 9 मंथ बहुत है, 1-1 मिनट हमें चाहिए कलर सिखाने के लिए। मैं उसका थीम क्यों रखूँ एक पूरा का पूरा? साइज सिखाना, मैं 1 महीने में एक ही साइज सिखाऊंगी, सर्कल। फर्स्ट मंथ सर्कल, सेकेंड मंथ स्क्वायर, थर्ड मंथ रेक्टेंगल, फोर्थ मंथ ट्रायंगल, फिफ्थ मंथ कोन। ठीक है, शेप हो गया। तो इस तरीके का आपका करिकुलम बनता है। ओके, अब ये तो आपका पूरा करिकुलम का पार्ट था कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अटेंशन स्पैन बच्चों का देख के बनना चाहिए, इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The content of your curriculum should be age appropriate. What does it mean age appropriate? Just now I said 3 years वो preschool जा रहा है, you cannot follow the same curriculum. जो 2.5 साल का बच्चा, अभी कोई बोल रहा था 2.5 से 3.5 वो प्री स्कूल गया, 2.5 साल का बच्चा, कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ही विल रीड अल्फाबेट्स एंड ही विल काउंट? नो, वी हैव टू जस्ट गिव देम स्टिमुलेशन। तो पूरा आपका जो 3 से 4 साल वाला करिकुलम है ना, वो पूरा प्ले बेस्ड, सिर्फ स्टिमुलेशन। 4 to 5 years में यू कैन इंट्रोड्यूस प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री अरिथमेटिक, क्योंकि 5 years में वो क्लास 1 में जाएगा। तो you are preparing that child for school. You might have heard the concept school readiness. That is again a very very important part of curriculum, school readiness. School readiness का मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे को पढ़ना सिखा दिया, एडिशन करना सिखा दिया, सब। नो, स्कूल रेडीनेस का मतलब है कि द चाइल्ड इज एबल टू सिट फॉर 4-5 hours in the school, because that's a formal system. There will be a fixed timing for school, and your child doesn't have attention span, is not able to sit for 15 minutes or 20 minutes. So first ask him, inculcate the habit of sitting half an hour consistently. फिर चलो 5 मिनट का ब्रेक, हाफ एन आवर, फिर 5 मिनट का ब्रेक, हाफ एन आवर, एंड दैट विल टेक अ लॉन्ग वे। बहुत टाइम लगता है हमको सिखाने में। सेकेंड थिंग, टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूल रेडीनेस। स्टैंड अप, आंसर, है ना, इस बात पे बोलो, क्योंकि बच्चे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। मन होता है बोलेंगे, नहीं मन होगा चुप रहेंगे। तो यू हैव टू टीच देम हाउ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल रेडीनेस। टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप उसको ईटिंग हैबिट्स दो कि वो खुद से खाएं, प्रॉपर टाइम के साथ, डिसिप्लिन के साथ खा लें। दोज आर द पार्ट ऑफ स्कूल रेडीनेस, एंड दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम इन 4 to 5 years. Because next year, after 5 years, the child is going to enroll in formal education system. There, nobody is going to teach them कि तुम 4 घंटे क्यों नहीं बैठे हो। बैठना है तो बैठना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है तो करना है, बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर चाइल्ड फॉर दैट। And school readiness is not about only preparing the child. Please consider it. कि बच्चा रेडी है तो वो स्कूल के लिए रेडी है, नो, पेरेंट्स को रेडी होना होता है। स्कूल रेडीनेस हैज 3 पार्ट: रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड, रेडीनेस ऑफ द पेरेंट्स, रेडीनेस ऑफ द स्कूल। कि पेरेंट्स तो तैयार है स्कूल भेजने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल रेडी है, अगर मेरा बच्चा डिसेबल्ड है तो स्कूल के पास रैंप है, वो रेडी है, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास वो टीचर है, उसके पास वो रिसोर्सेज है, लर्निंग मटेरियल्स हैं कि मेरे बच्चे को वो प्रॉपर फैसिलिटी दे पाए। दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट।
ठीक है। तो अभी जब आप एनसीएफ देखोगे तो उसमें 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो कि मैं आपको क्लास के बिगनिंग में ही बताई कि असर के सर्वे में आया है कि लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल at foundation stage is very very low in children of schools, especially in government schools. Have you ever visited any Anganwadi? Marli, your child is in Anganwadi, right? Yes, ma'am. Yes, uh, ma'am. can you brief the infrastructure of that Anganwadi? So it's actually Hmm. a house, a small house which they have taken into Anganwadi. But the way they've kept the Anganwadi is something I never expected at all. It's really good, clean. The floor is set clean. The way they've arranged it, the bookshelf, the bag shelf, the water bottle shelf, and the way teachers are interacting with children, all of that, it's I would say it's equal to a play school. I don't understand why people spend so much money on a play school. Our government Anganwadis are so much better, and I never expected this because when I was growing up, seeing an Anganwadi in my childhood, it is nothing Marlene, compared you like are that. It's very lucky better. enough. You are lucky enough, I would say, you got this good Anganwadi for your child. But most of the Oh, okay. Anganwadi are not in that position. आपका हो सकता है Oh, मॉडल आंगनवाड़ी हो, मॉडल okay. आंगनवाड़ी हो. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट सिस्टम, बट ये जो मेरा कॉलेज मानसरोवर में है, नहीं भी तो मैं 10 आंगनवाड़ी विजिट कर चुकी हूँ, मुझे एक में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. दे आर रनिंग इन टेम्पल के एक रूम में, दे आर रनिंग इन रेंटेड Okay. 1 रूम हाउस. तो सपोज आपका जो प्ले स्कूल है, आंगनवाड़ी है, वो रेंटेड है, जहाँ भी एक फ्लैट है या रूम है, जो भी है. तो हाउ द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड इज दे आर कैटरिंग टू? It's just हुमा, few प्लीज weeks म्यूट of योरसेल्फ बच्चे. sure. हाँ. It's just 2 weeks since he's gone, and just now he's starting to be there for around like 3 hours. आर Suddenly यू he has अवेयर ऑफ gone. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट? Yes, about how the writing and everything, ma'am. Like, नहीं नहीं is नहीं he? नहीं 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 नहीं. आपने पहली ही क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल डोमेन्स. फिजिकल Uh, डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में ही. फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, y- सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, yes, है ना? yes, yes, yes. है ना? तो जब आपने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा होगा ना, तो देयर इज अ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर तो आपका छोटे छोटे मसल्स, ग्रॉस Yeah. मोटर लार्ज मसल्स, जो कि आपको खेलने कूदने, जंप करने, स्किप करने से ही डेवलप हो सकता है. थ्रो करने से, कैच करने से, ये जो मसल्स है Yes. ना, ये ग्रॉस मोटर है. ये मसल फाइन मोटर है. Fine motor. And Yeah. for gross motor development, you need a lots of space to play. Okay, that's not there in the Anganwadi. Don't वही have मैं enough कह रही space हूँ, to play. वही मैं Yeah. कह रही हूँ कि whenever we select a preschool, तो we should see everything. और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्री स्कूल जो भी खोल रहा है ना, उसको अर्ली चाइल्डहुड पे कोर्स करके ही खोलना चाहिए. बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चे को चाहिए क्या. They are thinking, actually they are not working on children, they are working on parents. कि पेरेंट्स को हैप्पी करना है. पेरेंट्स को, बेटा मर्लिन म्यूट कर लो, कि Okay. पेरेंट्स को कैसे हैप्पी करना है कि उसका बच्चा कितना सीख गया. दे आर नॉट वर्किंग ऑन चिल्ड्रन. बच्चे को तो चाहिए ही नहीं, उसको तो सीखना ही नहीं अल्फाबेट्स, उसको तो सीखना ही नहीं है कुछ भी, वो तो खेलने में इंटरेस्टेड है. तो सिखा किसको रहे हैं? पेरेंट्स को. और गलत चीज़ सिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत चीज़ सिखा रहे हैं वो, कि आपके बेटी को ये आना चाहिए, वो आना चाहिए. नथिंग. लेट देम एंजॉय. हम प्री स्कूल भेज रहे हैं उसको सोशल होने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए, है ना? क्योंकि घर में वी बोथ आर वर्किंग, वी डोंट हैव एनी पीपल टू टॉक टू दैट चाइल्ड. सो वी आर गिविंग हिम सम कंपनी, सम पीयर ग्रुप, जहाँ वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीख पाए, जहाँ वो दूसरे की फीलिंग्स को समझे. अगर दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो उसको कॉम्प्रीहेंड करके रिस्पॉन्ड करना सीखे. मैं उसके लिए उसको प्री स्कूल भेज रही हूँ, मैं उसको पढ़ने नहीं भेज रही. पढ़ने के लिए पूरी लाइफ पढ़ी है, क्लास 1 से फिर फॉर्मल हो जाएगा, पढ़ लेगा वो सब कुछ. और ऐसा नहीं है, मैं अगर प्री स्कूल नहीं गई तो ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं नहीं गई प्री स्कूल कभी. आई एम नेवर गॉन. तो डिडंट आई स्टडी? आई स्टडीड. तो प्री स्कूल बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, और सब कुछ डिपेंड करता है 3 ही चीज़ों पे. मैं बार बार बोल रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम एंड पेडागोजी. ये 3 चीज़ें अगर किसी स्कूल के स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको अपने स्कूल को भेजना चाहिए.
है ना? अभी तक में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज आई स्टार्ट विद द एक्चुअल जो आपका बुक में है। कुछ है आपको Hello. अभी? हाँ, Hello. यस संजू। Ma'am, I have a question. हम्म Ma'am, actually, in this course, it's mentioned that we are able to teach the student till class second हम्म after completing the course. हम्म So, वही तो ma'am, मैंने बोला, वही तो मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर पहले कि एनईपी, आपने बोला मैंने नहीं सुना है ना? तो एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है 5+3+3+4 का, उसमें एक्चुअली क्या है कि 5 जो है ना, 5 इयर्स स्टार्टिंग के, उसमें प्री स्कूल का 3 साल है और क्लास 1 और क्लास 2 है, वो टोटल मिला के 5 इयर्स है। प्री foundational स्कूल का, stage. हाँ, प्री स्कूल का 3 साल, ये आपको कोर्स में स्टार्टिंग में बताया गया होगा कि फाउंडेशन Yes, ma'am, स्टेज का मतलब बताया क्या है, है but ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोर्स अकेले अपने आप में सफिशिएंट है कि फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ा सके, और वी नीड टू डू बीएड आल्सो फॉर दैट? देखो, बीएड का मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बट मेरी एक स्टूडेंट है जिसने कि सीटेट का लेवल 1 क्लियर किया है। सीटेट यू माइट हैव हर्ड, और उसमें उसने ह्यूमन डेवलपमेंट करा था, उसमें अर्ली चाइल्डहुड के उसके 2-3 पेपर थे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के। तो आपके तो पूरे कोर्स हैं, तो आप सीटेट का लेवल 1 क्लियर करके बन सकते हो टीचर, बीएड की नॉट रिक्वायरमेंट नहीं है। सीटेट का एंट्रेंस देके लेवल 1 क्लियर करके आप बन सकते हो। लेवल 2 सर, का इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट एक्चुअली बेटा ये एक नया कोर्स है जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आएगी ना वैकेंसी, तो उसमें ये कोर्स डाला जाएगा कि इफ यू हैव डन दिस यू आर एलिजिबल। तो अगर इन्होंने ये कोर्स निकाला है तो डेफिनेटली इसकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही निकाला होगा, जो एलिजिबिलिटी होती है वैकेंसी की। तो ये तो आपके हैंडबुक में भी लिखा होगा कि कहाँ आपकी जॉब लग सकती है या जॉब पर्सपेक्टिव क्या है इसके, है ना? तो पीजीडी करने के बाद मुझे लगता है कि आपको मिल जानी चाहिए जॉब, है ना? ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं आती, है ना? ओके। क्योंकि बहुत सारे प्री स्कूल हैं जो डीईसी डिप्लोमा करने के लिए भेज रहे हैं हमारे यहाँ लोगों को, तो आप तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, तो इट इज़ फार बेटर देन दैट। तो जॉब की टेंशन मत लो, जॉब प्री स्कूल में लग जाएगी। और जो शीतल कह रही थी कि अपना प्री स्कूल खोलना चाह रही हैं, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पेपर है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें कि प्रॉपर हम बताते हैं हाउ यू सेलेक्ट द लोकेशन, हाउ यू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ यू हायर द टीचर एंड एवरीथिंग इज देयर। तो बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ प्री स्कूल टीचर का नहीं है। यू कैन ओपन अ क्रच, यू कैन ओपन अ डे केयर सेंटर, देयर आर सो मेनी अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स, यू कैन ओपन अ स्पेशल स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन जो डिसेबल्ड वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली प्री स्कूल में जॉब करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, है ना? हाँ शोभा, यू आर आस्किंग समथिंग। Ma'am, I didn't get study material of this subject, and it's also not available on Gyancourse. It is available, it is available। I checked, but it's not available on हाँ Gyancourse नहीं, शोभा also. जी, it शोभा is जी, available। you are talking about study material Yes, yes, sir. you have not received so far. Sir, I received some study material, hard copy of subs, but this subject I didn't get. Okay, okay. So just send the email to your regional center. Okay, okay. Okay. Okay, sir. Thank you. And moreover, I'll share the link also tomorrow in tomorrow's class. I'll just copy that and I'll share. You'll get all the books online. It's available on eGyanKosh. Nothing to Okay, worry। ma'am, please share the link. हाँ, मैं एक बार इसको ढूंढूंगी और मैं आपको शेयर। शोभा जी, आपको तो मैंने वो लिंक पहले ही शेयर किया हुआ है। आप अगर अपना ईमेल चेक करेंगे तो मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा से ईमेल शेयर कर दूंगा वो लिंक आपको ना। Actually, sir, on Gyancosh, I didn't find this study material of this subject. MCD 003. ओके, ओके, तो सेंड द ईमेल, Okay. सेंड द ईमेल। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर लिख दीजिएगा कि किन कोर्सेज का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। ओके, Okay, sir. Thank you. setsing@ignou.ac.in I have shared in the chat box. Okay. और कोई क्वेरीज है टिल नाउ? किसी की और कोई क्वेरी? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। Yes, ma'am. I think please proceed. ओके ओके सर।
So I have talked a lot about curriculum, how it should be. Now come to the course, that is curriculum and pedagogy of early years and foundational stage education part 2. है ना? In this we have a total of I think 2 blocks. एक है आपका करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी पार्ट 1, एक है करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी पार्ट 2. यहाँ आपको अगर ई ज्ञान कोश पे बुक नहीं मिला है तो सर क्या आप लिंक अभी शेयर कर सकते हैं सो दैट दे कैन ओपन देयर बुक्स साइमल्टेनियसली. सर हाँ यस अर्चना मैम, आई एम शेयरिंग. हाँ प्लीज अभी कर दोगे आप ना, तो आप इसी पे चैट बॉक्स में कर दीजिए यस शेयर यस 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 सो दैट दे कैन ओपन देयर बुक्स, है ना. എനിക്ക് NCD 006 കിട്ടിയില്ല. म्यूट योरसेल्फ. ये जो पूरा कोर्स है ना इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं. टोटल 6 यूनिट है. द फर्स्ट यूनिट डील्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज स्किल. Ma'am, I had downloaded all the books of this course, and I have shared in our WhatsApp group. ठीक है. गुड 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 गुड. PDF file. हाँ PDF Sir, है तो आप is ये there any WhatsApp group? I'm not added in that. give your number in chat box, she will add you. I'm also not Okay. added. चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, दे विल ऐड यू, है ना. ये व्हाट्सएप ग्रुप आई थिंक बच्चों ने बनाया है क्या? I am not aware about any WhatsApp group. Sir had said the link. Ma'am, I have created WhatsApp group and Okay. send the link of the WhatsApp group to all the students for joining. But many students have not joined because we have received the data of 66 students from Student Registration Division IGNOU New Delhi. But only 10 to 20 students are joining the session. So we are continuously providing the information of each session to join, and also we are calling to all the students. Okay. So girls, as sir is saying, he has already shared the link, so you all can join that WhatsApp group I'm through that sharing link. again. है ना? I'm sharing again the link. If you have the link, sir, please share in this chat box also, so immediately they can join. At least these people they can join. Yes, Archana ma'am. Yes. So we have total 6 units in this course. First is introduction to language skill, then traditional approach to teaching reading and writing, which we have discussed so far कि traditional approach था क्या रीडिंग एंड राइटिंग का, कि अल्फ़ाबेट आप सिखाते थे, देन राइटिंग करना प्रॉपर ट्रेस करके सिखाते थे. बट व्हाट आर द कंटेम्पररी अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल. सो दैट इज यूनिट 3. Then unit 4 will go to language and literacy, experience in preschool and school in India. What is the present situation and will apprise it very critically. जो हम लोग अभी तक कर भी रहे थे. अगर आप ये सिलेबस देखोगे ना तो ऑलरेडी वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स कि पहले क्या अप्रोच थे, अभी कंटेम्प्रेरी एनसीईआरटी में क्या अप्रोच दिया गया है, विच वी आर डिस्कसिंग प्री रीडिंग प्री राइटिंग वाला. देन इंडिया का जो सिचुएशन है रीडिंग लैंग्वेज और लिटरेसी को लेके, वी क्रिटिकली अप्रेजिंग दोज थिंग्स, है ना. So we have covered few things. Then unit 5 we have language learning environment, how we can create the environment for learning language, and the last unit is creating a language learning environment finally. So come to the first unit, I'll start with that. Have you all opened the book? आपको बुक की लिंक मिल गई, आपने खोला? Yes, ma'am. So what are the language skills we want in our children? What are the language skills? क्या उनको language skills सिखाना होता है? हमारा outcome, learning outcome क्या होता है? क्या सिखाना है हमें? Listening, speaking, reading, and writing. Don't read the book. Basically दो कैटेगरी है, एक ओरल कैटेगरी है, एक रिटन कैटेगरी है ना. रिटन कैटेगरी में when we come we have reading and writing. लैंग्वेज स्किल की मैं बात कर रही हूँ. तो हम उनमें
रिटन लैंग्वेज स्किल भी डेवलप करना चाहते हैं, हम ओरल लैंग्वेज स्किल भी डेवलप करना चाहते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटन लैंग्वेज स्किल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग द स्किल ऑफ रीडिंग, डेवलपिंग द स्किल ऑफ राइटिंग. When we talk about oral listening skills या language skills, तो we are talking about listening and we are talking about speaking. ठीक है, listening और hearing में क्या difference है? Can anyone brief me? Listening और hearing में क्या difference है? Are you people listening me or are you people hearing me? Listening is with Uh, attention. Okay. Hearing hearing- means a perception that you are understanding thoroughly, and listening is just you are taking into your ears, not in your minds. उल्टा बोल रहे हो, शीतल. Okay, okay. Archana ma'am, Yes. excuse me, Archana ma'am. Yes, sir. I have shared the link of e-Gyan course. Yes, So yes. all students, please note it इसको and कॉपी check करके it. इसको कॉपी करके वर्ड फाइल में पेस्ट कर दो. यस मैम, आप इस लिंक के थ्रू ऑल थ्योरी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम गाइड एक्सेस कर सकते हैं, एंड आपका प्रैक्टिकल कोर्स भी है इसमें, आपका प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप वर्क, तो आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ये मैंने आपको ईमेल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. इफ यू चेक योर ईमेल यू विल फाइंड इट. जो ये क्लास की लिंक गई है ना, उसमें ही ये लिंक भी आया था, ये ज्ञान कोश वाला, इफ आई रिमेंबर. यस, मैं आपको अब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और शेयर कर रहा हूँ. यस अर्चना मैम, प्लीज कंटिन्यू योर सेशन. ओके, वेयर आई वाज. हाँ शीतल, तुमने पूरा ऑपोजिट बताया. एनीवन एल्स? लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है? एनीवन एल्स? अच्छा, अभी लिसन कर रहे हो, हियर कर रहे हो, ये बताओ पहले. Listening. Listening. वही मैं कह रही हूँ, पता है कि लिसन कर रहे हो, बट क्यों लगता है कि हियर नहीं कर रहे हो, लिसन कर रहे हो? व्हाई? Listening is actively listening and trying to understand the person, what they say. Hearing just goes past by us. We are not actively listening to the person. एक्चुअली हियरिंग मीन्स हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में गया और निकल गया. Yeah. ठीक है, एक वो हम एक कहावत कहते हैं ना, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, दैट इज हियरिंग. लिसनिंग मीन्स यू आर कॉम्प्रीहेंडिंग व्हाट द अदर पीपल इज सेइंग. यू आर डिकोडिंग, यू आर कोडिंग, यू आर डिकोडिंग उसके लैंग्वेज को. दैट इज लिसनिंग. अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसका कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो ना. अब अगर आप एक आपकी जो बुक में केस स्टडी बड़ी प्यारी से शुरू में दिया हुआ है कि एट द बिगनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन न्यू चिल्ड्रन वर एनरोल्ड इन सरिताज क्लास. सरिता इज अ क्लास टीचर, है ना, उसकी क्लास में नए बच्चे आए, प्राइमरी स्कूल टीचर इन लखनऊ. नाउ सरिता इज आस्किंग ऑल द चिल्ड्रन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स बाय टेलिंग देयर नेम एंड एज, जो मैंने स्टार्ट में करा आप लोगों के साथ. एज तो नहीं पूछा, नेम एंड बैकग्राउंड पूछा. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पोक इन हिंदी एंड सम इन इंग्लिश. लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है देखो. वन चाइल्ड आलोक, उसने उड़िया में बोला अपना नाम और अपना एज. ठीक है, अब कुछ बच्चे हिंदी में बोले, कुछ बच्चे इंग्लिश में बोले, एक बच्चे आलोक ने उड़िया में बोल दिया. तो बाकी के बच्चे जो थे, दे लुक्ड इन अमेजमेंट एंड कंफ्यूजन एट हिम एज दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट आलोक सेड बिकॉज दे डिडंट नो उड़िया. उनको उड़िया लैंग्वेज नहीं पता थी. हाउएवर जो दूसरी स्टूडेंट थी मिली, जो बायलिंगुअल थी, बायलिंगुअल मीन्स उसको उड़िया भी आती थी और उसको हिंदी भी आती थी, है ना, उड़िया एंड हिंदी. इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू आलोक इन उड़िया एंड टू अदर्स इन हिंदी. तो आप मुझे ये बताओ कि आलोक ने जो बोला, इसमें बाकी लोगों ने तो सिर्फ हियर किया ना, दे वर हियरिंग, दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड. लेकिन जो वो लड़की थी मिली, उसने उसको कॉम्प्रिहेंड करके उसको रिस्पॉन्ड भी किया. दैट इज लिसनिंग. तो लिसनिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंशंस ऑल्सो. और जो आप बोल रही थी परसेप्शन, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग. Perceptions depend on your comprehension. That is not a part of language skills perception, है ना. Okay. ये एक चीज आप देख लीजिएगा. तो इसमें एक और आपका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया. आप एग्जाम्पल अगर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा.
Amit told his sister to bring some toffees on her way back home. ठीक है, तो सिस्टर वॉज इन हरी, सारी ला दिया और चली गई। शाम में वो लाएगी, रिटर्न विथ 2 कॉफी पैकेट फॉर अमित। उसने बोला क्या था लाने? टॉफी। ये लेके क्या आई? कॉफी। तो मदर ने क्या बोला? डिड यू इवन लिसन टू हिम? यहां पे उसकी सिस्टर को लैंग्वेज तो आती थी, उसने सुना अमित को, बट वो घर से निकल रही थी बहुत जल्दी, तो उसने टॉफी को कॉफी सुन लिया। तो हियरिंग और लिसनिंग में अगर आप यहाँ पे अब आप डिफरेंस देखोगे तो हियरिंग रिफर्स टू receiving any and every sound in the environment. While I am teaching you, I am hearing the sound of bird chirping, I am hearing the sound of girls laughing around, girls talking around, because in our campus now festival is going on. So everything, every sound is coming in my ear. So, but I'm not listening to them. I'm listening just to your voices. I'm hearing all the sounds, but I'm not listening them. I'm listening your voice only, because I'm making some meaning out of your talk. ठीक है, मार्केट प्लेस में होते हो, बहुत सारी चीजें आपके कानों में आती है, दोज आर हियरिंग, दोज आर नॉट लिसनिंग। उसी तरीके से अगर हम, ये पहला स्किल था लिसनिंग और हियरिंग वाला। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है? अगर आपने प्री स्कूल में देखा होगा ना, बच्चों को जब आप राइम्स बोलते हो, they don't understand the meaning, they just mug up. Red light, what do you say? It says stop, stop just right away, है ना? बट जब रेड लाइट के सामने पापा की कार खड़ी होती है, जैसे पापा स्टार्ट तो करो, क्रॉस कर लो, they don't understand the meaning of that poem, they just memorize it, और वो हर दिन वो रिसाइट करते हैं। तो वो क्या हुआ? स्पीकिंग हुआ। वो क्या है? लिसनिंग है, हियरिंग है, क्या है? जो रिसाइट करते हैं वो पोएम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, इट कमिंग अंडर लिसनिंग और हियरिंग? हियरिंग है ना? लेकिन अगर वो रेड लाइट पे अपने फादर को बोलता है, पापा इट्स अ रेड लाइट, so you have to stop, because we have understood through that poem कि red light says stop. That means कि he was listening in the class, he was understanding the meaning of that rhyme. ठीक है, वैसे ही स्पीकिंग में आता है। कभी कभी आप बच्चे को बोलते देखना, कुछ भी बोलते हैं, उसका मीनिंग नहीं निकलता कुछ भी। वे एक से एक सेंटेंस यहाँ से, एक सेंटेंस यहाँ से, एक सेंटेंस यहाँ से, दे कीप ऑन टॉकिंग विदाउट एनी मीनिंग और विदाउट एनी कॉन्क्रीट थीम। दैट इज नॉट स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग मीन्स, द स्किल ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है स्पीकिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। Speaking is not just repeating or uttering words. No. It is speaking with understanding. ठीक है, और जब हम किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं ना अपने दिमाग में, तो वी जस्ट नॉट ओनली लिसन, वी स्पीक ऑल्सो, क्योंकि उसमें क्या है, लिसनिंग में आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। सो द स्पीकर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही इज स्पीकिंग, इवन इफ हर स्पीच इज नॉट फुल्ली ग्रामेटिकली करेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो, बट वो जो भी बोल रहा है वो समझ के बोल रहा है, दैट इज स्पीकिंग। क्लियर है? रीडिंग क्या होता है? रीडिंग क्या होता है? रीडिंग भी वही है ना। रीडिंग जैसे मैंने अभी आपको मॉर्निंग में एग्जांपल दिया स्टार्ट ऑफ द क्लास में, कि आप एक पेज रट लेते हो किसी भी लेसन का, एंड देन यू जस्ट रीड आउट फ्लुएंटली, बिल्कुल विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट कॉमा। बच्चे को देखा होगा पढ़ते हुए, पर जब आप मीनिंग पूछोगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दे विल लुक एट योर फेस, नो आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। दैट मीन्स कि दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, दे डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। Will you count this in reading? Does that child know reading? Huh? Girls, मुझे चाइनीज के अल्फाबेट्स आते हैं ना, मुझे चाइनीज के अल्फाबेट्स आते हैं, मैंने रट लिए, और मैं चाइनीज कंटेंट अब पढ़ सकती हूँ। लेकिन चाइनीज के कंटेंट को पढ़ने से हमें पूरी चाइनीज समझ में आ जाएगी क्या? No. नहीं आएगी, क्योंकि हम नमस्ते बोलते हैं, वो नमस्ते को कुछ और बोलते हैं। हमने वो वर्ड तो पढ़ लिया,
but what is the meaning of that word we don't know. That means we don't know how to read Chinese, we just know the लैंग्वेज, जो वर्ड वो अटर कर रहा है वो हम बोल रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग नहीं पता है हमें. यहाँ एक्चुअली हम इसलिए आपको मीनिंग समझा रहे हैं कि जब आप प्री स्कूल में अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में जाओगे, फर्स्ट क्लास में जाओगे ना, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा. अगर वो 2 चैप्टर उन्होंने रट लिया है ना, वो 2 चैप्टर आपको पढ़ के सुना देंगे, बस तीसरा चैप्टर जैसे खोलोगे, ये अभी मैम ने नहीं कराया है, ये अभी हमने नहीं किया है. रीडिंग का मतलब ये थोड़ी कि वो 2 पेज पढ़ लिया और रीडिंग आ गई. नो, रीडिंग का मतलब है कि यू कैन रीड एनीथिंग. स्पीकिंग का मतलब है कि वट एवर यू आर स्पीकिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, अगर आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग रीड कर रहे हो तो दैट्स ओनली अ मैकेनिकल एक्ट ऑफ सेइंग आउट लाउड. कोई भी चीज आप मैकेनिकली जोर जोर से बोल रहे हो, you're not extracting any meaning out of that. Hello. है ना. आपके अगले पैराग्राफ में the same example is given. You must have seen children read a paragraph or a sentence, but when you ask them to explain its meaning, they cannot do it. For extension video, you have to pay extra because after है ना. They can decode the text because they know the letter sound relationship. उनको पता है at a cat. You need an extension. That's why they are able to read. They can decode it, but they don't know the meaning of cat. कि cat किसको बोलते हैं. They have never seen a cat. अच्छा, तो फिर you have paid ठीक है. the amount extra. They do not comprehend the text. We cannot call this reading because children have not understood. वही सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ वही लिखी हुई. The ability to decode a text is a part of reading, है ना, but not reading in its wholeness. एक सेकेंड बच्चे. ठीक है, तो रीडिंग वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते. रीडिंग इज द एबिलिटी टू डिकोड अ टेक्स्ट. जो टेक्स्ट आपने पढ़ा, आपने अगर उसको डिकोड कर लिया तो आप कह सकते हो कि आप रीडिंग कर रहे हो. इसलिए हम कहते हैं कि रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 2 एस्पेक्ट्स. मेनली फर्स्ट, वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, CAT, सी को रिकॉग्नाइज करना, ए को रिकॉग्नाइज करना, टी को रिकॉग्नाइज करना. व्हाट वी डू, वी टीच द चिल्ड्रन इन सीक्वेंस की ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, और जब आप उसको एस लेटर दिखाते हो तो ही काउंट्स फ्रॉम ए बी सी डी. अच्छा ये एस है. नो, यू शुड टीच देम रैंडमली. ए सिखाया, फिर एल सिखा दिया, फिर एम सिखा दिया, फिर के सिखा दिया, फिर ओ सिखा दिया, so that they can recognize that word. So reading consists of basically 2 aspects. The first one is word recognition and second is language comprehension. Whatever language they are reading in, they should be able to comprehend that. And for these 2 competencies, that means कि word recognition and language comprehension, 2 competency चाहिए बच्चों को रीडिंग करने के लिए. तो you as a teacher, you have to develop these 2 competencies, these 2 skills in children to make them able to read. The first one is how to recognize the word and the second one is how to comprehend the language. And to develop these 2 skills, believe me, you need to develop a lot of competencies in children. Phonetics, sound, ग्रामर, सब कुछ आपको उसको सिखाना पड़ेगा. इफ़ यू आर टीचिंग देम वर्ड रिकॉग्निशन तो आपको उसको क्या क्या सिखाना पड़ेगा. आप पिक्चर देखिए, आपके इस पे बना हुआ है, जिसको तो 14 पेज नंबर, जिसमें आपके दोनों पार्ट, दोनों स्किल को बहुत अच्छे से बाइफर्केट किया गया है. इफ़ यू वांट टू गिव देम द स्किल ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव टू टीच देम द बैकग्राउंड नॉलेज. दैट मीन्स द फैक्ट्स, द कॉन्सेप्ट्स. If he or she is reading a chapter on animals, they should have a little background of animals. What animals are actually, what are the types of animals, how they look. थोड़ा सा तो concept होगा, इसलिए हम theme based approach लेते हैं. Second, you have to teach them vocab. Vocab is very very limited in early childhood. कितने वर्ड्स आते हैं 3 से 4 साल के बच्चे को?
कितने वर्ड्स आते होंगे बताओ, कोई बता सकता है? 3 से 4 साल के बच्चे को कितने सारे वर्ड्स आते होंगे? 1000, more than that. More than that? No, it's 500 to 900. 500 to 1000 रख लो तुम. Okay. They have only that much vocab, and whatever they are speaking is only those vocab. तो वो एक ही vocab को बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, है ना? सपोज कि उनको मिल्क पता है तो दे कैन यूज मिल्क फॉर मिल्क, दे कैन यूज मिल्क फॉर बटर मिल्क, दे कैन यूज मिल्क फॉर कर्ड, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच vocab. तो अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना, बोलते हैं मम्मम दे दो. मम्मम का बहुत मीनिंग होता है. मम्मम का वो मिल्क मांग सकते हैं, मम्मम का वो पानी मांग सकते हैं, मम्मम का वो जूस मांग सकते हैं, बट दे हैव लिमिटेड वोकैबुलरी, सो दे जस्ट से मम्मम दे दो, है ना? तो अ टीचर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर हैव टू वर्क ऑन देयर वोकैब आल्सो. Okay. The third thing, a language comprehension skill is required, that is language का structure, जिसमें आपका पूरा syntax और semantics आ जाता है. That also you have to teach. Fourth thing is verbal. We'll discuss it one by one. Verbal reasoning, है ना, जिसमें आप metaphor, interference सब सिखाते हो उनको. And the last skill for language comprehension is literacy knowledge, जिसमें हम जनरेज और प्रिंट कॉन्सेप्ट उनको बताते हैं. तो प्रोवाइड देम द वर्ड रिकॉग्निशन स्किल. जैसा मैंने पहले भी बोला, दे शुड बी अवेयर ऑफ फोनेटिक्स, देन दे नो हाउ टू डिकोड. डिकोड मतलब सी का साउंड क, दैट इज डिकोडिंग. सी साउंड्स क, दैट इज डिकोडिंग. एच साउंड ह, दैट इज डिकोडिंग, है ना? एंड द लास्ट वन इज साइट रिकॉग्निशन. हम जब पढ़ते हैं ना तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम एक सेकंड में देख के और हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाता है, साइट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम कि ये तो यही होगा. हैप्पी है, एच ए पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आ जाता है हैप्पी. दैट्स हाउ वी रीड फ्लुएंटली, एंड दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू राइमिंग वर्ड्स. रैट मैट कैट, तो वो देखेंगे, उनको पूरा र एट अ रैट पढ़ने की जरूरत नहीं है, म एट अ मैट पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट विल गिव देम अ साइट रिकॉग्निशन, दैट इज कॉल्ड साइट रिकॉग्निशन, जिसमें फैमिलियर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स को वो एज्यूम करके चलते हैं, नहीं तो वो फ्लुएंटली पढ़ ही नहीं पाएंगे. ठीक है, वाइट, काइट, राइट, इस तरीके के वर्ड्स हम राइमिंग इसलिए कराते हैं ताकि उनमें साइट का रिकॉग्निशन हो. एंड इफ एज अ टीचर यू डेवलप दिस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड रिकॉग्निशन स्किल वेरी नाइसली इन द चाइल्ड, ही और शी विल बी अ स्किल्ड रीडर, जिसमें कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, जो आपने लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड रिकॉग्निशन में सिखाया, ही विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट and he will be able to coordinate it properly, and that will ultimately help in their comprehension skill. तो आप देखो, हमने 2 मेजर स्किल बोला हमें सिखाना है, वर्ड रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, बट व्हेन वी बाइफर्केट देम we have to impart them a lot of competencies for them. तो रीडिंग सिखाना is not so easy, और जब हम अपने करिकुलम में रीडिंग को रख रहे हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि वोकैब का भी हो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, सिंटेक्स ग्रामर का भी हो, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का भी हो, वर्बल रीजनिंग का भी हो, फोनेटिक्स का भी हो, डिकोडिंग का भी हो, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. तो करिकुलम प्लान करना इज नॉट सो इजी, है ना? नाउ कम टू, ज़्यादा हो रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. गर्ल्स, तुमने तो उसको टीचिंग क्लास बना दिया. इट्स नॉट काउंसलिंग, ओनली आई एम स्पीकिंग. कल सारे लोग पढ़ के आने कल वाली क्लास के लिए. अब सबके पास लिंक है, बुक है. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? No, ma'am. मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तुम सुन ले रहे हो. Ma'am, you're going through too well. Everything is interrelated with the books and the examples. ऐसा नहीं होता. एक पार्ट होता है करिकुलम का, पता है, क्यूरियोसिटी, which we build in children. They are curious about anything, है ना? Until unless you will have curiosity, you will not ask questions. क्यूरियोसिटी नहीं है ना, बुक में तो लाइन ही लिखी हुई है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है. इफ यू हैव क्यूरियोसिटी यू विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, है ना? चलो,
So come to writing. As I said, before teaching them writing, we need to develop pre-writing skills. है ना? जैसे 3 years के बच्चे का जिसका कि फाइन मोटर इतना डेवलप नहीं है कि वो पेंसिल को पकड़ पाए, you cannot ask that child to write alphabets. You cannot expect that child to draw a perfect circle, perfect square. It's not possible for them. So we start with, as I said in the beginning, scribbling. पेपर दे दिया, पेंसिल दे दिया, पेंसिल भी मोटा वाला क्रेयॉन देते हैं उनको क्योंकि फाइन मोटर होता नहीं, मोटे मोटे क्रेयॉन्स आते हैं उनके, एंड वी जस्ट स्टार्ट विथ स्क्रिबलिंग. और इफ ही दैट चाइल्ड हैज ड्रॉन समथिंग, सर्कल दे दिया और कुछ भी आपने बोला कि आपके आसपास जितनी भी सर्कुलर चीजें हैं यू ड्रॉ, तो आस्क द चाइल्ड टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट ही और शी हैज ड्रॉन. है ना? हो सकता है कि कोई बोलेगा रोटी है, कोई बोलेगा मैंने मून ड्रॉ किया है, कोई बोलेगा मैंने अपना कैरम का कॉइन ड्रॉ किया है. कुछ भी उनके दिमाग में, इमेजिनेशन में कुछ भी आ सकता है, एंड दे कैन ड्रॉ दैट. इवन वट एवर दे स्क्रिबल ना, इट हैज सम मीनिंग फॉर देम, जबकि आपको कुछ नहीं दिख रहा है. प्री राइटिंग स्किल में वन ऑफ यू सेड क्ले मॉडलिंग. If you give them clay and ask them to make something, they'll show you after half an hour कि मैंने ये बनाया, and you will not understand what they have made. So can you just say कि ये क्या बना के रखा है फालतू चीजें? Can we say as a teacher? No. We have to ask the child what you have made. And you will be amazed to know that child will explain it so beautifully कि मैम मैंने elephant बनाया, this is the tusk, this is the trunk, जो कुछ भी visible नहीं है. But according to child, that's a perfect elephant he or she has made. Evaluation is another part, but I'll just tell you that we cannot assess the child on the basis of product. We assess the child on the basis of the process that child has followed. Okay, so whatever they are scribbling, whatever they are drawing in writing, ask them the meaning. ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया ड्रॉ कर लो और आप खड़े होकर देख रहे हो. गो टू ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड आस्क व्हाट ही और शी इज डूइंग, बिकॉज स्क्रिबल इज द फर्स्ट साइन ऑफ राइटिंग. पहला साइन ही होता है आपका स्क्रिबलिंग करने का, और ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है MCD 1 में आपने पढ़ा हुआ है ना. अब जब बच्चे ने कर लिया, स्क्रिबल में भी उनके एक्सप्रेशंस होते हैं. कह रहा है दिस मार्क और स्क्रिबल देयरफॉर इज अ चाइल्ड्स राइटिंग सिंस इट इज अ थॉटफुल एक्सप्रेशन. कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं वो स्क्रिबल करके, लेकिन पेरेंट्स और टीचर ये चीज नहीं समझ पाते कि व्हाट थॉट दे आर एक्चुअली वांट टू प्रेजेंट इन दैट स्क्रिबलिंग. लेकिन जब आप उससे बात करोगे तो वो आपको सारे सिंबल, सारे लेटर बोलेगा मैंने ये किया है, इसमें इसको कंबाइन करके मैंने ये चीज बनाई. आई एम टॉकिंग अबाउट 3 year old चाइल्ड. ये आपके पेज नंबर 16 पे एक स्क्रिबल दिया हुआ है, देखो. कुछ समझ में आ रहा है व्हाट ही और शी हैज ड्रॉन? क्या बनाया इसने? Child sleeping on bed. ओके, ग्रेट. और अपना अपना परसेप्शन बताओ. एनीथिंग एल्स? Looks like a sheep's head. I don't know. My son, they watch a cartoon, so the head looks like a sheep. That's what I can see. गुड, इट्स योर परसेप्शन. ओके, और लेफ्ट साइड वाला देखो. इट मे बी फ्लोइंग वाटर, इट मे बी माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन, कुछ भी हो सकता है. सो बीइंग एन एडल्ट यू रिप्लाई डिफरेंटली, जो आपका परसेप्शन था. तो बच्चे के दिमाग में तो पूरा इमेजिनेशन चल रहा है, वो तो पूरा बताएगा कि ये इसका नाक है, ये कान है, ये बेड है. जैसे वो बोला बेड पे सो रहा है, तो बेड है, ये बेडशीट है उसकी, ये ब्लैंकेट है जो ओढ़ के सो रहा है. क्यों सो रहा है ये भी बताएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज फीलिंग लो, है ना. तो एवरी स्क्रिबलिंग हैज सम मीनिंग फॉर द चाइल्ड. सो डोंट टेक इट एज कि स्क्रिबल कर दिया, हाँ ठीक है फेंक दो. टॉक टू द चाइल्ड व्हाट ही और शी हैज डन. ठीक है. उसके बाद है अगला पॉइंट आपका क्या है. इसमें मंकी वगैरह इसने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, कह रहे हैं, है ना. सिंबल है. हम ये क्यों कराते हैं स्क्रिबलिंग वगैरह?
एक तो फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए, सेकंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, व्हाट एल्स? क्यों राइटिंग कराते हैं? ये स्क्रिबल वगैरह क्यों करा रहे हैं? इमेजिनेशन डेवलपमेंट के लिए. Imagination, okay. What else? Actually, we cannot introduce the child directly to print. बुक से आप अगर बच्चे को देखोगे ना, तो रिटन वाली जो बुक होती है ना, वो हम बच्चों को पहले नहीं दिखाते, पहले हम पिक्टोरियल बुक दिखाते हैं. और पिक्टोरियल बुक के पहले भी हम उनको ये स्क्रिबलिंग वाली चीजें कराते हैं, जस्ट टू शो कि चाइल्ड इज ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ इन प्रिंट मीडिया. तो ये पहला पार्ट होना ही चाहिए. हम कन्वेंशनल राइटिंग जो होती है ना, लेटर और वर्ड्स, उससे स्टार्ट नहीं कर सकते. बट ये फाइनल स्टेज है कि स्क्रिबलिंग सिखा दिया एंड यू कैन इंट्रोड्यूस प्रिंट, नो. उसके बाद आप वो जो पैटर्न जाते हो, स्क्रिबलिंग के बाद आप स्टैंडिंग लाइन जाते हो, देन यू गो टू स्लीपिंग लाइन, डायगोनल्स लाइंस, देन पैटर्न जाते हो. और फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पैटर्न, इट स्टार्ट्स विद दो स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड वो वाली लाइन से. फिर हम कर्व्स में जाते हैं. तो वी प्रोग्रेस स्लोली विद द चाइल्ड, कि धीरे 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 करके हम उनको सिखाते हैं. सो राइटिंग हुआ क्या फाइनली? इट इज द एक्ट ऑफ कंपोजिंग एंड पुटिंग वन थॉट्स टुगेदर ऑन अ पेपर बोर्ड यूजिंग सिंबल्स. राइटिंग डजंट मीन राइटिंग अल्फाबेट्स और राइटिंग द वर्ड्स. राइटिंग का मतलब है, राइटिंग एंड रीडिंग क्या है? रीडिंग इज टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड, एंड राइटिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेशन. This is speaking is one of the way of expression. Writing is again a way of expression. And what we are expressing here, we are expressing our own thought. है ना? But before expressing that thought, we need to compose it. We need to give it a frame. है ना? So writing is basically an act of composing and putting one's thought together on a paper by using symbols. ठीक है? तो आप राइटिंग को एज अ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं ले सकते कि सिंपली लेटर लिख दिया, वर्ड्स लिख दिया. नहीं, आप बहुत सारे बच्चों को देखते होगे, आप कोई ऐसे का टॉपिक दे दो, कोई बच्चा उसको इतने अच्छे से लिखेगा, है ना, और कोई बिल्कुल हैप्पीजार्ट सा यहाँ ये बोल रहा है, वहाँ वो बोल रहा है ना. और जब आप उसके राइटिंग की एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी ट्रेड्स उसके आपके रिवील हो जाते हैं. ये सोच क्या रहा है, इसके थॉट प्रोसेस इस टॉपिक पे क्या चल रहा है. अगर मैं सिंपली बोलूँ, एक मैंने टॉपिक दिया मदर, मदर पे लिखने के लिए दिया, तो विल एक्सप्रेस ऑल हिज इमेजिनेशन अबाउट मदर, ऑल हिज एक्सपीरियंस अबाउट हिज मदर. नहीं करता. तो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स अ वे ऑफ पुटिंग योर थॉट्स टुगेदर ऑन पेपर, दैट्स ऑल. राइटिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग लेटर, राइटिंग वर्ड्स, नो. तो ये चीजें हमें आपके प्री स्कूल में इनकलकेट करनी है. उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फार वी हैव गॉन थ्रू रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना, और लिसनिंग. ये चार चीजें हमारी जो मेजर लैंग्वेज स्किल थी वो हमारे कवर अप हो गए. अब अभी तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. No? Okay, I'll move forward. Do you think in this reading, writing, speaking or listening, whatever we gone through, thinking has any role in this? Your thought process has any role in this? इनका कोई रोल है आपके थॉट प्रोसेस में? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में LSRW बोलते हैं. LSRW का हमारे थिंकिंग में कोई रोल है? I have come to page number 18. You can open that page number. अगर ये चीज़ें नहीं हुई ना बेटा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तो हम अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे. हाउ डू वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड? वर्ल्ड मीन्स हमारा सराउंडिंग. हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे. एक तो हमारा सेंसरी ऑर्गन है एक्सप्लोर करने के लिए, टच, स्मेल, हियरिंग, विजन, ये सारे. प्लस these LSRW जो हैं, they help a lot to make sense of the world. Because with this reading, writing or speaking, we can explain, we can reflect,
वी कैन एनालाइज, वी कैन इमेजिन। इमेजिन करने के लिए भी आपको वर्ड प्रोसेसिंग चलती है दिमाग में। आप जब इमेजिन भी करते हो ना, तो आप या तो अपने आप को बोलते हो या अपने दिमाग में लिखते हो, कुछ भी करते हो, है ना। तो इमेजिनेशन, किसी चीज को हाइपोथेटाइज करने के लिए यू नीड LSRW स्किल। अगर मुझे यही नहीं पता है कि इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको कंप्यूटर बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर बोलते हैं, तो हाउ कैन आई प्रोसेस द इंफॉर्मेशन? वी कैन नॉट, है ना। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी आपकी केस स्टडी दी हुई है कि a 5-year-old was fascinated by the farming tools that she saw her father using every day. Pointing to each of these farming tools, she asked her father, "Papa, what is this?" To which her father replied, "This is pruner." "Oh, it is a pipe." "This one is seed shower." है ना? The young girl learned the names and simultaneously her father also showed her what each tool was used for. तो ये क्या उसके फादर डेवलप कर रहे थे? लैंग्वेज के लिए तो डेवलप कर रहे थे ना, कि हर एक टूल का नाम बता रहे थे उसको। अगर कल को वो बच्ची उस टूल के, एग्रीकल्चर के बारे में ही या फार्मिंग के बारे में ही कुछ बोलना चाहे, तो शी वांट्स दिस वर्ड्स, शी हैज टू यूज दिस वर्ड्स। अब अगर उसने पाइप को समझा ही नहीं कि वो पाइप इसको बोलते हैं, तो हाउ शी विल एक्सप्लेन? कैसे करेगी वो एक्सप्लेन वो क्या कर रही है? सपोज वो जाके गार्डनिंग कर रही है एंड यू गो एंड यू जस्ट आस्क व्हाट यू आर डूइंग, हाउ शी विल एक्सप्लेन व्हाट शी इज डूइंग? हाँ, वो कह रही है मैं वाटर कर रही हूँ प्लांट को। कैसे वाटर कर रहे हो? शी डजंट नो दिस इज कॉल्ड पाइप। तो कैसे बोलेगी कि मैं पाइप से वाटर कर रही हूँ? हाँ, ये है एक, इससे मैं वाटर कर रही हूँ। नहीं। तो इसलिए थिंकिंग के लिए ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल, और एक बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। और इग्नू की ये बुक की बहुत अच्छी बात होती है, इनके बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। इवन ह्यूमन डेवलपमेंट में मुझे लगता है कि इन्होंने भी पढ़ा होगा इग्नू की बुक्स, हुमा, क्योंकि हम टीचर्स इग्नू के बुक बहुत रेफर करते हैं, इनके बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना। We used to give them pamphlets only हाँ, from अच्छा। different regions. नहीं, हम लोग तो बच्चों को इग्नू के बुक्स देते भी हैं, क्योंकि मतलब इनके जो कंटेंट होते हैं इट्स वेरी इजी, आप एक बार पढ़ोगे। और इसीलिए इनकी प्रॉपर क्लास, ऐसे रेगुलर क्लास नहीं होते, काउंसलिंग होता है कि आप इसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल, कि आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, फिर जो छोटे छोटे डाउट आते हैं वो आप काउंसलर से क्लियर कर सकते हो, है ना। इसमें जो दूसरा केस स्टडी है, व्हेन अ यंग चाइल्ड इज इंट्रोड्यूस टू अ वर्ड, से द वर्ड हॉर्स, सपोज हॉर्स से उसको इंट्रोड्यूस किया, शी इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हॉर्स। सिर्फ हॉर्स बता देने से होगा, या हॉर्स का पूरा कॉन्सेप्ट उसको बताना पड़ेगा ना। तो सिर्फ आप एक वर्ड उसको नहीं समझा सकते, वर्ड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाना पड़ेगा, है ना। इनिशियली द चाइल्ड मे रिफर टू मेनी डिफरेंट 4-legged एनिमल्स एज हॉर्स। अगर तुमने उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया तो वो हॉर्स को पता ही इमेजिन क्या करेगी, काउ, बिकॉज शी हैज सीन द काउ। तो आपने उसको बोला 4-legged है, दौड़ता है, तो आप वो कैसे इमेजिन करेगी कि काउ के ऊपर बैठ के हम कहीं जा रहे हैं? इट्स लाइक हॉर्स, है ना। But however, as her vocab and understanding of what exactly the word horse stand for develops, she names different 4-legged animal with their respectiveness. जब आप उसको concept clear करोगे कि how the horse is different from cow, तो वो समझ पाएगी इसको, है ना। She forms a concept of all these different animals, similarly having a vocab for different kind of emotions. तो आपने सोचो ना, अगर उसको डिफरेंस ही बता दिया कि how the horse is different from elephant, lion, cow, सब कुछ, तो आपने तो एनिमल का पूरा vocab उसको अच्छा खासा दे दिया ना। Earlier she was having only one vocab of animal, that is cow, because she has seen the cow. या उसके घर में अगर डॉग है पेट, तो she has seen the dog कि 4-legged होता है, ये होता है, टेल होता है, सब कुछ बता दिया आपने। लेकिन जब आप उसको दूसरे वोकैब से इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो वोकैबुलरी डेवलपमेंट में आता है, जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट था। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, योर थॉट प्रोसेस सपोर्ट्स योर लैंग्वेज। जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो, और आपको सोचने के लिए भी वोकैब चाहिए, आपको सोचने के लिए भी ग्रामर चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके लैंग्वेज में
रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसमें एक लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, है ना। कल आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, आई वुड लाइक टू फिनिश इट, देन हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। इसमें एक केस स्टडी है कि देयर इज अ मेंटल वर्ड दैट अ चाइल्ड असाइन टू द फ्रूट ऑफ गुआवा, से अप्पू, है ना। शी हैज यूज्ड अनदर वर्ड मेमो टू डिनोट स्वीट, जो कोड वर्ड वो लोग यूज करते हैं। किसका म्यूट है? इसका अनम्यूटेड है सर का। सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ ना, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। Yes, ma'am. हाँ, थैंक यू सो मच सर, है ना। तो नो वन हैज टॉट दीज वर्ड्स टू हर, नॉट डज एनी वन यूजेज दिस वर्ड्स इन हर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जब उसकी माँ पूछती है कि वाइल फीडिंग द गुआवा, गुआवा खिला रही है वो बच्चे को, और वो हमेशा ही पूछती है हाउ इज द गुआवा, जिसका बच्चा क्या बोलता है? अप्पू मेमो। अप्पू मीन्स उसने गुआवा को बोला है अप्पू, और मेमो मतलब स्वीट है। उसने कोड डिकोड कर रखा है वैसे, क्योंकि उसके पास वो कैब नहीं है वो, है ना। तो वो ये कहना चाह रही है कि गुआवा इज स्वीट, बट व्हाट शी इज सेइंग, अप्पू मेमो, बिकॉज गुआवा वाला वो कैब उसके पास नहीं है, स्वीट वाला वो कैब उसके पास नहीं है। तो उसका जो सोचने का तरीका है वो उसके लैंग्वेज में नहीं आ रहा है। तो आपको थॉट को लैंग्वेज से कोरिलेट करना है, बच्चे के थॉट प्रोसेस को लैंग्वेज से कोरिलेट करना है, एंड दैट यू कैन डू ओनली बाय डेवलपिंग दिस LSRW। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, if any one of you have any question. No. ठीक है, I think no question from student side. ठीक है And सर। dear students, as ma'am suggested, for next session you have to read some study material, because IGNOU provides study material, um, and the study of the study material before attending the counseling session, it always very useful. So because during the academic counseling, you can interact with the academic counselor uh, for any difficulties, for any doubts. So it would be better if you go through the study material which is available on IGNOU eGyan course, and you have received in hard copy. So you can interact with our academic counselor, and you can get more benefit from the counseling sessions which are being organized for better understanding about theoretical aspect as well as practical aspect. Because when we will organize the practical counselings and practicals and project work, so the counseling sessions which are being organized and uh, attending by you, it would be very helpful in the examination purpose and other purpose. So thanks, ma'am, Archana ma'am. So dear students, Thank you so much sir. as I request to attend the next session at 2 p.m. and very heartfelt gratitude from our regional center Jaipur for elaborating about the third course, first session of the third course, and making the more interactive session. So Thank you because so much sir. very always very useful to the students, because जब हम इंटरेक्टिव वे में क्लास करते हैं तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना सर होता ये है। पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। यस मैम, अभी तो इनको लग रहा है कि जो मैं बता रही हूँ दैट्स ऑल, नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप पढ़ोगे तो आपको मेरे से ज्यादा अच्छा नॉलेज हो जाएगा, देन यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस। डेफिनेटली। सो थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक अर्चना। यू सर, थैंक यू सर, आई एम डिस्कनेक्टिंग, थैंक यू। Thank you, ma'am.